کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی اس کو نااہلی کہیں یا ریلوے حکام کی لاپرواہی، ذمہ دار کون ہوگا؟ ملتان ریلوے ٹریک کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں، داخلی راستوں پر گندگی کے انبار لگ چکے ہیں، جبکہ عملہ صفائی بھی لمبی تان سے ہو چکا ہے۔ شہر اولیا کے راستوں کو مزید خوبصورت بنانے والے ریلوے لائن کو ہی بھول بیٹھے۔ ریلوے کے داخلی راستوں پر گندگی کے ڈھیر لگ گئے، جسے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تعفن پھیلنے سے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ریلوے کے لوگ آتے ہیں، وہ اسے اٹھاتے نہیں ہیں، ایک جگہ اکٹھا کر کے اور اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ اس سے اتنی پولوشن پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کے بچے بیمار ہو گئے ہیں۔ جو ٹرین آتی ہے دیکھتے ہیں ملتان ہے، ملتان کا یہ حال ہے، گند اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ شاہ صاحب کا حلقہ ہے، یہاں آگ لگا دیتے ہیں، علاقے کو جراثیم ہوتی ہے، بیمار آدمی دمے کے مریض ہیں، یہاں کوئی جات پوچھنے والا نہیں۔ ریلوے لائن سے گندگی اٹھانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور ریلوے حکام دونوں نے ہی منہ پھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف مہلکہ آبادیوں میں رہنے والے متاثر ہیں، بلکہ بذریعہ ٹرین دیگر شہروں سے آنے والے مسافروں پر شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات کا برا تاثر پڑ رہا ہے۔ نہ میونسپل کارپوریشن آتی ہے، نہ ریلوے انتظامیہ یہاں سے اس گند کو اٹھاتے ہیں۔ گند اتنا ہو گیا بے انتہا، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ کچرا پورے روڈ پہ ہے، یہاں پہ کوئی اٹھانے والا نہیں آتا۔ جو ٹرین آتی ہے دیکھتے ہیں ملتان ہے، ملتان کا یہ حال ہے، گند اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ شاہ صاحب کا حلقہ ہے۔ یہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ریلوے لائن پر عرصے سے صفائی نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے کئی بار ضلع انتظامیہ کو آگاہ کیا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ ملتان کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے والے شاید یہ بھول گئے کہ ٹرین کے ذریعے بھی ملتان میں داخل ہوا جاتا ہے، لیکن داخلے کے اوپر ٹرین کے ذریعے آنے والے اس گندگی کو دیکھ کر ملتان کا کیا تاثر لے کے جاتے ہوں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ نہ تو ریلوے سوچ رہی ہے اس بارے میں اور نہ ہی ضلع انتظامیہ۔ کیمرامین ہارون کے ساتھ محسن ملک، ملتان۔ روہی کی خبر پر ایکشن، ڈپٹی کمشنر خوشاب نے بلدیہ حکام کو کوڑا شہر سے باہر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ روہی نے کوڑا شہر کے وسط میں پھینکنے اور آگ لگانے کی خبر نشر کی تھی۔ روہی بنا خوشاب کے شہریوں کی آواز۔ روہی نیوز کی خبر پر خوشاب انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے بلدیہ حکام کو کوڑا کرکٹ شہر سے باہر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ بلدیہ حکام نے دھوئے پر قابو پانے کے لیے ریسکیو ٹیم اور میونسپل کمیٹی کا کرین ٹریکٹر منگوا لیا۔ ریسکیو عملہ نے لگی آگ اور فوری حل ہونے پر شہریوں نے روہی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹہ روڈ پکا کا سیوریج سسٹم درہم برہم گلی حاجی منظور والی میں گٹروں کا پانی جمع ہو گیا۔ زیر تعمیر مسجد کا کام بھی رک چکا ہے، جس سے علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پکا انتظامیہ کی نااہلی سے سیوریج سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ گلی حاجی منظور والی میں گٹروں کا پانی جمع ہو گیا ہے، جس سے شہری گھروں میں مسحور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ زیر تعمیر مسجد کا کام بھی روک دیا گیا ہے۔ مسجد کی اینٹیں بھی گندے پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ مسئلہ ہے، نمازی حضرات پریشان ہیں، آمد رستے خراب ہے، سارا پانی جو ہے آگے ہے رستے، نمازی حضرات پریشان ہوتے ہیں۔ بند ہے کڑن نمازیوں کو پریشانی تھی ہے، مزید لیکن وہ سلا سارے اتنا پہ نمازیاں پلی تھیں پہ نمازی تنگ تھی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھروں کے باہر پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے، بدبو کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی۔ منتخب نمائندے بھی غائب ہیں، کمشنر ملتان فوری نوٹس لے کر سیوریج کے مسائل سے نجات دلائیں۔ کیمرامین جاسر بریار کے ہمراہ عاشق حسین قریشی، روہی نیوز، کہہ روڈ پکا۔ کرچٹھا کے علاقے چوٹی سری میں ایک ماہ سے واٹر سپلائی اسکیم بند ہے، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس چکے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ شہر چوٹی زیری کے مکین صاف پانی سے محروم۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے عدم ادائیگی کے باعث بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ 30,000 سے زائد آبادی کو گزشتہ ایک ماہ سے پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ واٹر سپلائی اسکیم بند ہونے سے اہل علاقہ زہر آلود پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ شہری آبادی ہے جو 20-25 ہزار سے بھی زائد ہے، گزشتہ ایک ماہ سے پینے کے میٹھے پانی سے ترس رہی ہے، کیونکہ زیر زمین پانی انتہائی کڑوا اور ناقابل استعمال ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر ٹی جی خان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس بات کا نوٹس لے کہ واٹر سپلائی اسکیم بلا وجہ کیوں بند ہے۔
सदर अंजुमन ताजरान इकरामुल्लाह चंगवानी का कहना था कि महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम को पानी भी खरीदना पड़ रहा है। चोटी जरीद में डेढ़ माह दो माह तक पानी का नाम तक नहीं है और लोग रोजाना की बुनियाद पर 100 से 300 रुपए का पानी खरीद करते हैं। इसलिए मैं इंतजामिया खास कर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डीजी खान से गुजारिश करना चाहूँगा, फौरी तौर पर चोटी जरीद की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उन्हें बहाल किया जाए। इलाका मकीनों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। मुल्तान में पुराना डबल फाटक फ्लाईओवर की लाइट्स खराब है। लाइट्स खराब होने से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो चुका है। शहरी कहते हैं कि काफी अरसे से इस रोड की लाइट्स खराब है, कोई तवज्जो नहीं देता। मजीद जानते हैं माजिद क्लासरा की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के दावे हकीकत से कोसों दूर। मुल्तान अंधेरे में डूबने लगा। पुराना डबल फाटक फ्लाईओवर की लाइट्स अरसा दराज से खराब। अंधेरे की वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि बारहा मर्तबा शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। तो फील अरसे से लाइटें बंद हैं। इंतजामिया से हमारी इल्तिजा है कि भाई ये लाइटें ठीक की जाएं। यहाँ पर आने जाने में बड़ी तंगी होती है, अक्सर मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो काफी प्रॉब्लम होती है आने वालों जाने वालों को ना। शहरियों का कहना था कि फ्लाईओवर की लाइट्स मुकम्मल गैर फाल होने से इस सड़क पर हादसात मामूल बन चुके हैं। अंधेरे की वजह से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ये बहुत अरसा हो गया ये बंद है। जैसे कि देखा जा रहा है आगे सर्दी है, धुंध का मौसम है, तो इन्हें चाहिए लाइट सही हो। रात को गुजरना होता है कि बहुत तंगी होती है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि पुराना डबल फाटक फ्लाईओवर की लाइट्स फौरी ठीक कराई जाएं ताकि शहरियों को गुजरने में आसानी हो सके। डबल फाटक फ्लाईओवर की लाइट्स खराब होने से गुजरने वाले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरी जिला इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फ्लाईओवर की लाइट्स को जल्द अज जल्द ठीक कराया जाए ताकि गुजरने वाले शहरियों को आसानी हो सके। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। सरावा में टिम्बर माफिया से गर्म डांडेवाला का 917 एकड़ पर मौजूद घना जंगल बंजर हो चुका है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ टिम्बर माफिया ने दरख्त काटने शुरू कर दिए। जंगल की रौनकें खत्म हो गईं। जंगल का कुल रकबा 917 एकड़ है। 117 एकड़ पर माफिया काबिज है। अहले इलाका का कहना था कि दरख्त काटे जा रहे हैं और आरे भी दिन रात चल रहे हैं। जानवरों के जंगल में जाने से दरख्तों का नुकसान होता है। जंगल के मसाइल की बात करें तो सबसे बड़ा जंगल का मसला कटिंग ऑफ ट्री है। यहाँ से जो दरख्तों को काटा जाता है, मकामी लेवल के ऊपर आराजात मौजूद हैं। फॉरेस्ट एक्ट की उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और आराजात काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 75 एकड़ पर सुनामी ट्री की मद में नए पौधे लगाए गए, लेकिन 6 माह से उनको भी पानी नहीं दिया गया। यहाँ पे पिछले साल जो अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 2019 से लेकर 2023 तक 10 अरब प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट मिला था, उसके तहत पिछले साल यहाँ पे जो है 75 एकड़ नए पौधाजात लगाए गए थे। एक तरफ दरख्त लगाओ मुहिम जारी है, जबकि दूसरी जानब टिम्बर माफिया दरख्त काटने में मसरूफ है। हुकूमत को जंगल बचाने के लिए एक्शन लेना होगा। कैमरा टीम के साथ ताहिर चौधरी, सिनामा। गुंगे बहरे मुलाजमीन भी सड़कों पर आ चुके हैं। बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर चौक पर एहतजाज किया। कहते हैं 3% कोटे के मुताबिक मुलाजमतें नहीं दी जा रही। स्पेशल अफराद भी मैदान में आ गए। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर चौक पर एहतजाज किया। 4 रास्ते ब्लॉक करके घंटों ट्रैफिक बंद रखी। कहते हैं उन्हें 3% कोटे के मुताबिक मुलाजमतें नहीं दी जा रही। पूरे बहावलपुर डिवीजन में से गुंगे बहरे इकट्ठे हुए हैं। ये अपने जॉब के हवाले से भी एहतजाज कर रहे हैं और इसमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी ये चाहते हैं कि हमारा 3% कोटा हो और ये चाह रहे हैं कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो हैं उसमें भी हमें कमी पेशी हो। और सफरी कार्ड के हवाले से भी मतलब कि ये कहते हैं कि हमारा एक बंदा अलाउ है कि कम से कम एक बस में हमें जो है ना 2-3 सीटें तो अलाउ कर दें भाई, उसमें हम ट्रैवल कर सकें। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उजैर अहमद का कहना था कि खुसूसी अफराद के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है। मुतअद्दिद सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। आज भी उनके मसाइल सुने हैं जिन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत सारी कंसेशन जो है वो अवेलेबल है। अभी इनको जो बड़ा मुतालबा है वो है कि 3% कोटे की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाया जाए। इसमें अभी कोशिशें तो हो रही हैं, बहुत सारे लोग एडजस्ट भी हुए हैं। अभी कुछ मुतालबात लेके आए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके नुमाइंदगान जो है वो इकट्ठे होकर जाएं, डी साहब से उनकी एक मीटिंग करवाते हैं ताकि ये अपने जो एजेंडा है, जो भी अब इनके मुतालबात हैं उनके सामने रख सकें ताकि उनको हल करने की कोशिश की जाए। खुसूसी अफराद का कहना था कि उन्हें 3% कोटे के मुताबिक मुलाजमतें दी जाएं। पंजाब सरकार सफरी सहूलियात के वादे भी पूरे करे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से तो पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे मजीद महंगा हो गया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है जो कि 177 रुपए
43 पैसे है। बढ़ती हुई दरामदात और तिजारती खसारा पाकिस्तानी रुपए को ले डूबा। अमरीकी डॉलर एक दिन में 64 पैसे मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर 176 रुपए 79 पैसे से महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गया। डॉलर मजीद महंगा होने से गरीब आवाम का कचूमर निकल गया। पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान है, ये महंगाई और बढ़ेगी। मुझे एक आदमी कह रहे थे, जो महर थे, वो कह रहे थे कि डॉलर जो है 200 तक जाएगा। मैं बाकी क्या बचेगा? जो सैलरीड पर्सन है वो कुचला गया, गरीब लोग हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके 3-3.5 साल दौर इक़्तिदार में 77-78 रुपए का जो इजाफा है उसका इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसका आप सोच नहीं सकते। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 179 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। महंगाई की मारी आवाम का कहना है कि इस हुकूमत से डॉलर काबू नहीं हो रहा, ये दूसरे मसाइल पर कैसे काबू पाएगी? हर चीज महंगी होने से उनकी जिंदगियां जीरन हो चुकी हैं। हुकूमत से मुईशत जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रही, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो डॉलर के साथ मुंसलिक है कारोबार में और बाकी चीज़ों में। तो जाहिर है हम भी उसी के साथ हैं और डॉलर के साथ ही मुंसलिक हैं। सनतकार बरसर इक़्तिदार रहे या जो और लोग बरसर इक़्तिदार रहे, उन्होंने डॉलर को और इन चीज़ों को कंट्रोल रखा। आप कहते हैं मसनूई तरीके से, लेकिन जिस तरह भी रखा उससे आवाम को तो फ़ायदा पहुंचा। सो असल मसला ये है कि आवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत पर सनतकार भी बिलबिला उठे। ताजर रहनुमा सैयद आसम कहते हैं डॉलर की कीमत में इजाफे से इंपोर्ट शदीद मुतासिर हुई है। डॉलर की गैर मुस्तहकम सूरत हाल से सनतें भी मुतासिर हो रही हैं। एक्सपोर्ट में डॉलर का बढ़ना फायदेमंद है, लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी जो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होती हैं, जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होती हैं, डाइज हैं, केमिकल्स हैं, ये सारी इंपोर्ट हैं, इसके ऊपर काफ़ी अखराजात बढ़ जाते हैं। 7 माह में डॉलर 25 रुपए महंगा हो चुका, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपए बढ़ गया है। बहावलनगर में अनोखा एहतजाज देखा गया है। अब का मुलाजमिन का गले में रोटियां डालकर मुजाहरा। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। फाटक चौक से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। बहावलनगर में अबका के दर्जनों मुलाजमीन ने गले में रोटियां डालकर अनोखा एहतजाज किया। फाटक चौक से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जबकि अबका के मरकजी रहनुमा मोहम्मद खालिद अलवी का कहना था कि हुकूमत हमारे साथ मुसलसल वादा खिलाफी कर रही है। अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम मुतालिबात फौरी तौर पर पूरे किए जा रहे हैं। एंटी करप्शन मुल्तान की टीम का मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर छापा। कंपनी का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। एंटी करप्शन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 3 मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात कर रही है, जिनमें स्पेयर पार्ट्स और मरम्मती कामों के टेंडर में माली बेइंसाफियों का मामला भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी में मशीनरी की मरम्मत के दौरान नाकिस और पुराने स्पेयर पार्ट्स डलवाकर बिल महंगे स्पेयर पार्ट्स के वसूल किए गए। एंटी करप्शन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप में फ्यूल और मशीनरी की मरम्मत की मद में होने वाले 2 करोड़ रुपए से ज्यादा करप्शन के मामले की तहकीकात कर रहा है। सियासी मंजरनामे से आपको खबर है। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। हमने IMF की सख्त शराइत की असम्बली के अंदर और बाहर मुखालफत की। खानेवाल जिमनी इलेक्शन में जीत कर पीपल्स पार्टी की ही होगी। खानेवाल के सूबाई हल्का 206 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। यूसी चेयरमैन मलिक अल्लाह जार अवान और मेंबर डिस्ट्रिक्ट राव फुरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि अगली हुकूमत आपकी और अवाम की होगी। पीपल्स पार्टी के दौर में एयरपोर्ट्स और मोटरवेज बनी, काश्तकार खुशहाल था और गंदम, चीनी, चावल एक्सपोर्ट होती थी। अपनी उम्दा पॉलिसी की वजह से ज़राअत में इनकलाब लाए और अजनास की कीमत हमने बैनुल अक़वामी तौर पर मुकर्रर की। स्मगलिंग भी रुक गई और आपने देखा चीनी भी एक्सपोर्ट होती। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि 16 दिसंबर को आपने मीर वासिक को जितवाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महंगाई करके अवाम को कुर्ब में डाल दिया है। अब मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। और IMF को आप जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रखना चाह रहे हैं, हम उसको नहीं मानते। ये बजट भी देते हैं और फिर मिनी बजट भी देते हैं। इस मौके पर सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, अब्दुल कादिर शाहीन, मीर आसिफ खान दस्ती,
रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, उम्मीदवार MPA मीर वासिक हैदर, हैदर जमान कुरैशी, हाजी रमजान भुल्लड़, मलिक रियाज, MPA शाजी आबिद, MPA मखदूम मोहम्मद उस्मान, रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अली खान, रिजवान हास, मतलूब बुखारी, आबदा बुखारी, राव साजिद अली समेत जियालों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, खानेवाल। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के फायर फाइटर्स को बेहतरीन कारकर्दगी का सिला मिल गया। गैरिजन कमांडर ने हर फाइटर को 25,000 रुपये इनाम से नवाजा। CEO मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी बाबर हुसैन और डायरेक्टर मिलिट्री लैंड मैडम जीनत अहमद ने खसूसी शिरकत की। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के फायर फाइटर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर 55,000 रुपए का इनाम मिल गया। अहम तकरीब कैंटोनमेंट ऑफिस में हुई। CEO मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड चौधरी बाबर हुसैन और डायरेक्टर मिलिट्री लैंड जीनत अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और फायर फाइटर्स की हौसला अफजाई की। रूमी फैब्रिक्स में एक आग भड़क उठी, उसमें इन्होंने जाके अपनी जानों पे खेल के वहाँ पे जो है ना आग बुझाने में अहम किरदार अदा किया। तो बात यह है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी एक जान जिसने बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो ये दे नीड्स इनकरेजमेंट। तो गैरिजन कमांडर ने इनको कैश इनामात दिए हैं। कैंटोनमेंट अमले ने भी कार में बर वक्त आग बुझाने और रूमी मिल्स में बेहतरीन ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया। मुल्तान गैरिजन स्टेशन कमांडर ने फीकस 25,000 रुपए इनाम दिया, जिस पर फायर फाइटर्स की खुशी दीदनी थी। मशकूर हूँ मैं अपने CEO साहब का, डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने ये हौसला अफजाई के लिए फायर ब्रिगेड स्टाफ के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो ऐसे प्रोग्रामों से स्टाफ में हौसला अफजाई होती है। तकरीब के अख्तिताम पर कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम मुलाजमीन के लिए दावत का एहतमाम भी किया गया था। अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचाने वालों को आज न सिर्फ सलूट पेश किया जा रहा है बल्कि उन्हें कैश इनाम भी दिया जा रहा है। और ये तमाम तर चीज़ें कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान की तरफ से किया जा रहा है ताकि इस तरह का अमल आइंदा भी जारी रहे। कैमरामैन हारून के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर प्रोफेसर डॉक्टर शकील पताफी के एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब में प्रोफेसर साहिबान और तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर प्रोफेसर डॉक्टर शकील पिताफी के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। डायरेक्टर कॉलेजेस शेख फयाज अहमद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सैयद इरशाद बुखारी, प्रोफेसर्स और तुलबा और तालिबात ने शानदार खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। जो कुछ भी कॉलेज के लिए किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने BS इंग्लिश को राजनपुर में मुतारिफ कराया ताकि जो स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकते, अपनी तालीम को अपने शहर में ही पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी काविश थी। डायरेक्टर कॉलेजेस DG खान प्रोफेसर शेख फयाज अहमद का कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर शकील पिताफी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर शकील पिताफी रंजीदा होने के साथ साथ बहुत पुरुम्मीद भी नजर आए। मैं सुरखरू हूँ कि मैंने बच्चों की तालीम, तरबियत, नए डिसिप्लिन कायम करने, BS कॉलेज और MA की क्लासेस स्टार्ट करने में बहुत किरदार अदा मुझे करना पड़ा और इसके लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आफिसरान की मदद से वो सारे मसाइल जो हैं। मुख्तलिफ औकात में 20 से ज़ायद तकरीबात का इनकाद किया गया। रिटायरमेंट के मौके पर मुख्तलिफ औकात में 20 से ज़ायद तकरीबात का इनकाद किया गया। आखिरी रोज रेस्क्यू 1122 ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि तलबा और तालिबात ने फूलों की पत्तियां निछावर की। प्रोफेसर डॉक्टर शकील पिताफी जहां अपनी रिटायरमेंट के मौके पर ढेरों दुआएं समेट कर गए, वहीं पर यह उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की कि ये कॉलेज आने वाले वक्तों में मजीद तरक्की करेगा। कैमरा टीम के हमरा खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर।